Chalo, I'll start with the lesson today. Straight away, I'll come to the screen. We were doing certain solved examples of MySQL. So the last thing we have done was what is the difference between primary key and unique constant. So after that, we'll continue with the next question. Well, this question is regarding uh, MySQL again. And the question is like this: Rishi is a student of class 12. He has given the following command for the given purpose. First question is that to add a new column rating. Now you want to add a new column. तो उसने ये लिखा update table library add column rating varchar 20. So check if the above SQL command will be able to achieve desired task or not. Justify your answers. So इसमें क्या गड़बड़ है? Update command is not used to add a column. It is basically used to change the value. So here it should be alter table command, right? So in place of update table, you have to write alter table. Rest all is okay. Library is the name of the table. Add column rating is the name of the column. Varchar is the data type. 20 is the size. सिर्फ ये update की जगह पे alter आएगा. Second में क्या है? To give an increase of 50 rupees to all the books. So alter library set price is equal to price plus 20. यहाँ पे value change करनी है, alter नहीं आएगा, यहाँ पे update आएगा. So we'll write update library set price is equal to price plus 20. Right. So this is done. Then is write a query to create the table book. These are the particulars of the book. In this book, name of the table is books. And we have 4 columns over here. सबके data types given है, size given है, और ये book ID जो है वो primary key है. So it's quite easy. Create table लिख के write the name of the book, name of the table. Table name is books. Although books is in capital, so we should also write capitals. Bracket open. Name of the first column. First column book ID है, book underscore ID है. Then data type integer, bracket में size given है 2 and primary key constant we have added, comma. Next column is book underscore name. It is varchar 20 is the size, comma. Next category varchar 10 is the size, not 20. And issue underscore date, and the data type is date. Now data type can be written in small or capitals, that we know. ये capital small दोनों में लिखे जा सकते हैं. Name of the columns and the name of the table should be exactly as per the questions. और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन आएगा, राइट. This is another question, 3-mark question. Mr. Manav, a DBA database administrator in this organization, has created the following table training. The name of the table is training for upcoming train schedule. So ये table बना है train schedule का. Fine. Now in this you can see यहाँ पे columns लिखे हुए हैं. The table का design नहीं है, exact table है. Training ID, name, email ID, topic, city, fees. Right. So these are 6 columns over here and the values are already there. Help him in writing SQL query for the following. Now, this type of question is generally asked in exam कि आपको एक table दिया होगा और नीचे कुछ queries होंगी, उसकी commands लिखनी है आपको. The first question is to count how many female candidates will be attending the training. Now, how many female candidates that we have to count? Female candidates कैसे पता लगेगा? It will be from the name. जिसके नाम के आगे MS है, मिस है, तो वो female है. So how will you write the statement? Select count keyword and count what? Count the name, right? N is capital. From training का भी
T कैपिटल है, नेम ऑफ द टेबल, वेयर नेम लाइक M परसेंटेज एंड इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगाओ डबल लगाओ, बोथ विल वर्क. सो व्हाट विल दिस चेक, ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा नेम को और जिस नाम के आगे MS और डॉट है, परसेंटेज मतलब उसके बाद कुछ भी हो at of whatever size. So it will check those names which starts with MS dot and वो वाले पर्टिकुलर वैल्यूज जहाँ पे कंडीशन मैच होगी वो काउंट हो जाएंगे, उतने नेम्स वो काउंट कर लेगा. फाइन. So this will give the count answer. Next question is to display the list of free trainings, right? Free trainings is where the fee column does not have a value. जहाँ पे fee की value नहीं है मतलब null है, हमें वो काउंट करना है, तो कंडीशन में जहां हम डाल देंगे वेयर फी इज नल, रेस्ट ऑल इज ओके. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर फी इज नल. ठीक है, रिमेंबर फी इक्वल टू नल नहीं लिखना है, इज नल लिखना है, बिकॉज फॉर नल वी ऑलवेज राइट इज नल और इज नॉट नल, राइट. Next is to display all the cities where cyber security training is scheduled along with its fee. So all the cities we need to display where cyber security training is going on. So where topic is cyber security, right? और उसके साथ उसकी फीस भी हमने शो करनी है, दो चीजें, cities and fees, right? So the command will be like this: select city, comma fee, right? यहाँ पे एक गड़बड़ ये है, C कैपिटल होना चाहिए, F भी कैपिटल हो, इधर भी ट्रेनिंग में T कैपिटल, राइट. सो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं. सेलेक्ट सिटी कॉमा फ्री फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर कॉलम का नाम क्या था, टॉपिक इज इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी, टॉपिक इज इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी. नो, साइबर सिक्योरिटी इज ए टेक्स्ट, सो in text in text value should be written in inverted commas always, right? Semicolon at the end. Coming to next question, to add a column feedback with suitable data type. So feedback नाम का हमने कॉलम बनाना, ऐड करना है, और फीडबैक में जनरली वी राइट टेक्स्ट, so it should be character or varchar. So how do we add a column? अभी हमने किया था alter table command से. So we'll write alter table, name of the table, name of the table is training, add keyword can be in smaller letter, add new column feedback. अब यहाँ पे उन्होंने f छोटा लिखा है तो हम feedback को भी small ही रखेंगे. This is the name of the new column. Data type char or varchar, both can be given, and then give some size 20, 25, 30, whatever number you want to give. ठीक है, इससे नया कॉलम एड अप हो जाएगा टेबल के अंदर, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस थिंग. नाउ अब सेम टेबल से रिलेटेड आपको कमांड्स दी हैं, वी आर गिवन विद द कमांड्स एंड देन वी हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ इट, राइट. सो लेट्स सी दिस. Select city from training where topic is equal to cyber security. Now we need to select city and from the table training only, जहाँ पे topic जो है वो cyber security है. So let's see this. Topic cyber security यहाँ पे है, ये city क्या है, न्यू दिल्ली. तो first answer will be न्यू दिल्ली. Then cyber security ये है फरीदाबाद, cyber security गुरुग्राम. So we'll get this answer: न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम. Right, so answer will be in a single column find kind of thing, एक column की तरह display होगा, ठीक है. although this I have just typed because इसमें वो नहीं है, although जब आप exam में when you attempt such questions you have to give a column, right. So I'll just show you one, इस तरह का column बना के यहाँ पे you have to give the heading. Now heading कैसे decide होगा, heading will be from the select statement. select में क्या था, city लिखा, तो we'll get city here, ठीक है. तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे आउटपुट वाले क्वेश्चंस. फाइन. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज select count training underscore id from training where email underscore id like
परसेंटेज जीमेल परसेंटेज मतलब कि जहाँ पे जीमेल वर्ड कहीं ना कहीं पे जरूर हो, ठीक है। परसेंटेज बिफोर दिस जी मीन्स ये वाला परसेंटेज ये स्पेसिफाई करता है कि जीमेल से पहले कुछ भी हो, एंड दिस शोज दैट जीमेल के बाद भी कुछ हो, राइट। सो जहाँ पे ईमेल आईडी में जीमेल वर्ड है उनको उनकी ट्रेनिंग आईडीज को काउंट करना है। सो लेट्स सी, दिस इज जीमेल, राइट। सो एक इसका ट्रेनिंग आईडी काउंट हो गया, ये याहू है, ये रेडिफ है, ये नल है, ये जीमेल है। तो दो जीमेल हैं, दो ट्रेनिंग आईडीज काउंट हुए, सो विल गेट टू आंसर। काउंट विल ओनली काउंट, राइट, विल गेट टू, दैट्स इट, right? Again it will be shown like this. I'll again draw this in the form of a table. एग्ज़ाम में आप लोग भी ऐसे ही करोगे। आउटपुट जब भी ड्रॉ करना है तो आपको टेबल बना के दिखाना होगा, और टॉप पे now remember what should be heading should be whatever written in the statement, select statement. So अगर वहाँ पे count training ID है, we'll get count training ID. Fine. So next will be select AVG. AVG is to find the average fee. So fee वाले कॉलम का एवरेज निकालना है from the table training where topic is equal to cyber security. तो जहाँ पे cyber security topic है उन फीस का हमें एवरेज we have to calculate. Now see cyber security ये है, इसकी फीस होगी 10,000, cyber security ये है 12,000, cyber security ये है null है. Now we have three values, 10,000, 12,000 and null. Now what will be the average? See यहाँ पे एक ambiguity है, 10,000 plus 12,000 plus there is no value, null, right? So average is dividing all this with number of values. We'll divide all this by number of values. Now if you see, when you add up 10,000, 12,000, it becomes 22,000. 22,000 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? It will come around 7,000 something something, right? But we are getting answer as 11,000. Why so? The reason over here is it will not divide it by 2, will 3 will divide it by 2. Why so? Because जहाँ पे null है वो हम काउंट नहीं करेंगे। यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दैट एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो। सम में तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बेसिकली एवरेज में ही या काउंट में प्रॉब्लम होती है, राइट? काउंट और एवरेज में। नाउ इफ यू राइट काउंट देयर, तो काउंट में वो इस वैल्यू को काउंट नहीं करता जहाँ पे नल है, ठीक है। तो हमने साइबर सिक्योरिटी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 फीस होनी चाहिए। तो अगर हम काउंट फी डालेंगे, काउंट फिल विल गिव यू only 2 answer, not 3, because null is not counted. Similarly, to find average also, so we'll find the average of two values only, 10,000 12,000, not null is not counted, so we'll divide it by 2. तो ये ध्यान रखना है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। दो वैल्यूज हैं, तीसरी वैल्यू को हमने काउंट ही नहीं करना, बिकॉज दैट इज नल, ठीक है। सो दिस बिकम 22,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 11,000, विल गेट 11,000 एन आंसर, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि भाई नल वाला ऑप्शन होगा कहीं पे, आपने काउंट या एवरेज डाला होगा। काउंट या एवरेज में हमेशा याद रखो कि नल विल नॉट काउंट, नल को इग्नोर कर देंगे। तो अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो वो नल छोड़ के विल डिवाइड द रेस्ट पार्ट और द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विद द नंबर ऑफ टर्म्स एक्सक्लूडिंग नल, नल को छोड़ के, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट। अगर नाउ अगेन आंसर ऐसे नहीं आएगा, आंसर मैंने जैसे बताया कि इट विल गेट अ टेबल। आउटपुट आप कैसे शो करोगे? टेबल में, और विल गेट ओनली answer over here, and heading will be whatever written in the
command. ठीक है, so this is how the answer will look up. Next question is select name from training where in string email underscore id comma at the rate. Now in string is again I think it is not part in our syllabus, so I'll just show you. मैं बता देता हूँ, वैसे ये सिलेबस में नहीं है. इन स्ट्रिंग का काम होता है कि ईमेल आईडीज में जो ये सिंबल है, ये सिंबल कौन से नंबर पे आता है वो हमें शो करना है. ठीक है, तो ये जैसे 1 2 3 4 लेटर जो है वो एट द रेट है, इसका 4 आंसर आएगा. इसमें 1 2 3 4 इसमें है ही नहीं, तो दैट इज ओके. इसमें भी 4, सो लोकेशन बताता है इन स्ट्रिंग. Anyhow, leave this because this is not in our syllabus. Okay, next question, very important. What is the degree and cardinality of the given table training? Training की degree और cardinality क्या है? Now, as I told you, cardinality is number of rows, degree is number of columns. So कितने columns हैं, कितने rows हैं, हमें count करने होंगे. How many columns we have? 6, right? So degree will be 6. And how many rows we have? 1 2 3 4 5. Remember, ऊपर वाली रो काउंट नहीं होती है, वो सिर्फ हेडिंग्स हैं. We talk about rows. First row is this. ठीक है, 1 2 3 4 5 rows we have. So the cardinality is 5 and degree is 6. Okay, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है. Okay, similarly, another question is consider the table library. So library maybe we have 7 columns and then we have 5 rows. Question 1 is suggest the suitable data type for the issue date command. Issue date में क्या है, देखो dates हैं, तो data type क्या होगा, date ही data type होगा. For adding a date, the data type is also date. Fine. Then suggest the suitable command to change the size of the column name from 30 characters to 50 characters. तो नेम नाम का जो कॉलम है इसका हमने साइज चेंज करना है 30 से लेके 50 तक. सो बेसिकली वी आर चेंजिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. उसके लिए alter table कमांड यूज होगी. विल राइट alter table, नेम ऑफ द टेबल. नेम ऑफ द टेबल इज लाइब्रेरी, एल इज कैपिटल. और मॉडिफाई कीवर्ड यूज होता है जब आप रोज के डेटा टाइप्स को चेंज करो या डॉट्स के डेटा टाइप के साइज को चेंज करो. विल राइट मॉडिफाई, name of the column is name, name का n capital, then put varchar and size. यहाँ पे हमने जो चेंज करना है 30 पहले होगा, अभी हमने 50 करना है. we'll write 50 here. This will change the size of this column. Fine. Next is mention the significance of bid column in the table library. Now see this bid column. So bid is basically bid. These are IDs. What is the importance of BIDs over here? That bid is basically the primary key of the column, because we see if name ho to name can be similar, authors can be similar, price can also be similar. Okay, members name can be similar, date of issue can be same, status is also same. This is the only column left which will always have unique values. So this must be your primary key, right? So bid will always have unique values which will help uniquely identify each record of the library tables, which helps us to identify the records, identify the rows uniquely. So basically bid column is, or even if you write bid column is the primary key, that is also sufficient, because primary key वही होता है जिसमें unique values होती हैं और rows को identify करने के लिए, uniquely identify करने के लिए use होती है, right? Next is suggest the suitable command to display a list of books in a sequence. Sequence means either ascending or descending, so that first all the book's name should be displayed which have been returned, and after that all the book names which has not been returned. Now अभी हमने book names के accordingly नहीं लगाना है, हमने उनको लगाना है status के accordingly.
कि पहले वो आनी चाहिए जिसमें बुक रिटर्न्ड होगी, ये रिटर्न्ड वाली ऊपर आनी चाहिए, नॉट रिटर्न्ड वाली नीचे आनी चाहिए, ठीक है। सो विल नॉट अरेंज देम विद द नेम ऑफ द बुक्स, इसको अरेंज नहीं करना है हमने, इसको अरेंज करना है, ठीक है। रिटर्न वाली ऊपर, नॉट रिटर्न वाली नीचे। सो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग अगर ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर विल अप्लाई टू दिस कॉलम स्टेटस, नॉट टू द नेम कॉलम, ठीक है। तो इसको हम कौन से ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग? इट विल बी डिसेंडिंग। व्हाई? बिकॉज आर हैज टू कम अप, आर वाली वैल्यूज ऊपर आनी चाहिए, एन वाली वैल्यूज नीचे जानी चाहिए। नॉट रिटर्न स्टार्ट फ्रॉम एन और रिटर्न स्टार्ट फ्रॉम आर। तो आर बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये देखे तो डिसेंडिंग जाएगा। असेंडिंग लगाएंगे तो नॉट रिटर्न वाली सारी वैल्यूज ऊपर होंगी और रिटर्न वाली नीचे आएंगी, तो इसलिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले, वी हैव टू डिस्प्ले द name of the books. To select name, column name is name over here, name of the books. From library, name of the table is library. Order by, name of the column is status, status का S capital है, and DESC क्या करेगा, descending order के में status वाले column को arrange कर देगा. So we'll get the names from by making this status column in order of descending order. So ये descending order में होने के बाद जो names आएंगे वो names को वो display कर देगा, ठीक है। सो रिटर्न्ड वाली ऊपर, नॉट रिटर्न्ड वाली नीचे। सो पहली वैल्यू आएगी विंग्स ऑफ फायर, नेक्स्ट वैल्यू विल बी यू कैन विन, उसके बाद द मॉन्क हु सोल्ड द फेरारी, देन हु मूव माय चीज, देन रियल सक्सेस। ये ऑर्डर बनेगा, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच जनरली कम्स। ये एक और कैटेगरी है जिसके क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें दो टेबल्स दिए होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें सिंगल टेबल था। Now this is another type of questions where we have two tables और हमें जो भी statements लिखनी है दोनों tables को combine करके join करके लिखनी है। So these are basically joining statements. Now we have two tables, customer and transactions, both belongs to bank database, ठीक है। एक customer table है, एक transaction table है। और अब ध्यान में देखो तो यहाँ पे एक कॉलम कॉमन होगा, अकाउंट नंबर, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, राइट। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू डू स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ट्रांजेक्शन्स करने से पहले हमें टेबल को स्टडी करना चाहिए। वो क्या कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये अकाउंट नंबर वाला जो कॉलम है किस टेबल में इट इज द प्राइमरी की एंड इन विच टेबल इट इज द फॉरेन की। अब ये प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे पता लगेगा, जिस कॉलम में रेपिटेशंस हो रही हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे 2301003 जो है ये 3 बार है, राइट। तो ये रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट प्राइमरी की, ये फॉरेन की है, ठीक है। और जहाँ पे वैल्यू यूनिक है ये प्राइमरी की है, राइट। सो विल हैव अ कस्टमर टेबल in which account number is a primary key and we have some other columns. We have transaction table in which account number is the foreign key and we have other columns. अब foreign key है तो इसकी अपनी भी primary होनी चाहिए, इसकी अपनी primary transaction ID है, right? So transaction ID over here is the primary key. Fine. So let's jump to the questions now. First of all, identify the candidate keys of the customer table. Customer table में candidate keys कौन सी हैं? Now remember candidate keys वो हैं जो जिनको हम primary create कर सकते हैं, right? So what all, now see account number यहाँ पे unique होंगे, names can be similar to this cannot be primary, so this cannot be candidate key. कस्टमर सिटी कैन ऑल्सो भी सिमिलर, न्यू दिल्ली सिमिलर है वैसे भी, तो ये भी सिमिलरिटी के चांसेस हैं, तो दिस कैन नॉट बी कैंडिडेट की। कस्टमर फोन नंबर्स कैन बी यूनिक, ठीक है, ये हो सकता है यूनिक हो, तो इसको हम कैंडिडेट की ऑप्ट कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस इज ऑल्सो कैन बी सिमिलर, ये 10,000 दो लोगों का है, तो इसको भी कैंडिडेट की नहीं ले सकते। वी हैव अकाउंट नंबर एंड कस्टमर फोन, दीज टू कॉलम्स विल बी दी candidate keys over here, ठीक है, अकाउंट नंबर एंड
customer phone. Fine. So you can also define this, that's all the column having capabilities to become primary key as known as candidate keys. ये हमें define भी कर सकते हैं यहाँ पे. Next is with reference to above given table, attempts the questions. Write a query to display customer's name who has withdrawn the money. कस्टमर नेम को डिस्प्ले करना है जिन जहां पे मनी विड्रॉन की गई हो, राइट. सी कस्टमर नेम्स आर हेयर, मनी विड्रॉन हमें यहाँ से पता लगेगा क्रेडिट या डेबिट. ठीक है, क्रेडिट वाले कॉलम जो है वो विड्रॉ वाले होंगे. सो नाउ टू थिंग्स वी हैव टू डू, एक तो कस्टमर नेम डिस्प्ले करना है, दूसरा ट्रांजैक्शन टाइप हमें आइडेंटिफाई करनी है. दोनों अलग अलग टेबल में है. दैट मीन्स वी नीड अ ज्वाइनिंग स्टेटमेंट ओवर है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हाँ, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर सी ट्रांजेक्शन टी. ये मैंने बताया था सी और टी क्या है, हम एक शॉर्ट नेम एलियास नेम्स वी कैन गिव टू द टेबल्स. सो देन वेयर ये कॉमन होता है जब भी ज्वाइनिंग देनी है, तो सी डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू टी डॉट अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर क्यों? बिकॉज अकाउंट नंबर वो कॉलम है जो दोनों टेबल्स में है, कॉमन कॉलम, राइट. और उसके बाद एंड कीवर्ड लगाया और देन वी सिंपली राइट ट्रांजैक्शन टाइप इज इक्वल टू डेबिट. तो ये क्या करेगा, इन दोनों को मैच करेगा, दोनों अकाउंट नंबर्स को, और फिर फिल्टर करेगा जहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में डेबिट है, उन कस्टमर नेम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, राइट. नाउ इसमें देयर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग क्वेश्चंस. अभी आई विल कम टू यू आफ्टरवर्ड्स, राइट. Various ways of writing question, like this is also one way. Select customer name comma t dot star. T dot star will show you the complete transaction table rows. तो एक कस्टमर नेम के साथ में ट्रांजेक्शन टेबल की पूरी रो भी लगा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है. ठीक है, और अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आई जस्ट मॉडिफाई हेयर. मैं इसको सी को हटा दूं, टी को हटा दूं, यहाँ पे आई राइट कस्टमर कंप्लीट एंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट. ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉल अलियास से भी डाल सकते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग. ठीक है, बाकी थोड़े टिपिकल होते हैं, सो आप उनको अवॉइड करो. बेस्ट वे ये है. सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर कॉमा ट्रांजेक्शन वेयर कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन डॉट अकाउंट नंबर. ये हो गया ज्वाइनिंग. और हमने यहाँ पे ये भी चेक करना था कि ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट जो है, तो एंड लगा के वेयर ट्रांजेक्शन टाइप इज इक्वल टू डेबिट, right. So this is how we write the statement. Next is write the query to display customer names who have not done any transaction yet. जिन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं की है अभी तक, राइट. तो उसके लिए कमांड क्या आएगा, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ट्रांजेक्शन सी. दिस मच इज सेम, यहाँ तक तो सेम हो गया. ठीक है, बस हमने नॉट डन दैट. नॉट डन में क्या होगा, विल जस्ट सिंपली पुट नॉट ओवर है. जहाँ पे हम इक्वेट कर रहे थे, इक्वेट करके इक्वल निकाल रहे थे दोनों टेबल्स के कॉलम्स को, अकाउंट नंबर्स को, वहाँ पे जो मैच नहीं करते हैं तो वो वाले डिस्प्ले हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे. ठीक है, तो रेस्ट ऑल विल बी सेम. वी जस्ट हैव टू पुट दिस इज नॉट इक्वल टू सिंबल. ओके, इसके बाद है how many rows and column will be there in the Cartesian product. Cartesian product is not on syllabus, we'll leave it. Next is select this from this account number comma sum amount. Account number और amount का sum चाहिए इन दोनों tables में से. Now the command is given, you have to give output here. command में क्या है कि हमें account number show करना है और amount का sum निकालना है
जहाँ पे ये दो टेबल्स हैं और दोनों में ज्वाइनिंग क्वेरी लग गई, ग्रुपिंग की है, ग्रुप बाय अकाउंट नंबर हैविंग ट्रांजेक्शन टाइप इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, सो हेयर व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन टाइप जहाँ पे क्रेडिट है, और दूसरी चीज़ जहाँ पे ये दोनों अकाउंट नंबर्स मैच करते हैं, वो वाले अकाउंट नंबर प्लस अमाउंट का सम, राइट, दैट वी नीड टू डू। और ग्रुपिंग करनी है हमें अकाउंट नंबर्स के अकॉर्डिंगली, राइट। सो टेबल देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज ट्रांजेक्शन टाइप इज इक्वल टू क्रेडिट ढूंढो, फिर अकाउंट नंबर्स को ग्रुप करो, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट है। ठीक है, तो इनमें अकाउंट नंबर 3003 003 003 ये तीन है, तो इनकी जो वैल्यूज है उनका सम हो जाएगा तीनों का। तो 15,000 प्लस 26,000 प्लस 24,000 इट इज 65,000। फाइन, एक ग्रुप ये हो गया, और दूसरा क्रेडिट वाला है ये, इसमें देर इज ओनली वन रो इन दिस, सो विल गेट ओनली 20,000 ओवर हेयर, और ये तो क्रेडिट है ही नहीं तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास दो ही वैल्यू बचती हैं, राइट। सो द आंसर विल बी 65,000। अच्छा, हमने उनकी ट्रांजेक्शन आईडीज भी देनी है, तो 65,000 आ गया पहले वाले में, और दूसरे वाले में 20,000 आ गया अमाउंट, और उससे पहले हमने उनके अकाउंट नंबर शो कर दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली दो कॉलम्स बनेंगे, ये थोड़े जुड़े हुए दिख रहे हैं, मैं थोड़ा डिस्टेंस डाल देता हूँ। ये दो कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम होगा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट नंबर्स का, दूसरा कॉलम होगा जो अमाउंट बनी है उनका सम। ठीक है, ग्रुपिंग के बाद तो एक 2003 वाला ग्रुप, एक 02 वाला। 01 वाला नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे क्रेडिट नहीं है, वो डेबिट है, तो ये 01 में डेबिट है, सो विल नॉट काउंट दिस। हमें सिर्फ क्रेडिट वाले देखने हैं, तो क्रेडिट वाले ये चार हैं, इनमें से तीन में 03 अकाउंट नंबर है और एक में 02 है, तो एक 02 वाला तो 20,000 एज इट इज आ जाएगा, 03 के तीनों जो वैल्यूज है उनका सम हो जाएगा। ठीक है, तीनों के सम होके इतना आ गया, और 02 वाला 20,000 एज इट इज आ गया, राइट। दैट्स इट फ्रॉम टुडे आई सपोज। इसके बाद this thing is also over now, right? So let's wind up